why Bangladesh gifted a map which is claiming our northeastern region. Well, the Bangladesh government has responded to the controversy surrounding the book that was gifted by Muhammad Yunus to Pakistani General Sahir Shamshad Mirza. Is Greater Bangladesh another strategy by Pakistan to isolate India? And is Greater Bangladesh an actual thing, or it is just a danger point that India should be aware about? One diplomatic gift has become a flashpoint for shifting geopolitics in Southeast Asia, because this map-based gift is not just a symbol, it shows that how identity narratives are changing and strategic positioning are going to also change. Hello everyone, welcome to Vajiram and Ravi's Flash News. My name is Shubhangi Singh and today we are going to talk about what is this map gift that has stirred the controversy related to Greater Bangladesh. So let us understand that what exactly has been happening. So recently a diplomatic meeting has taken place between Pakistan and Bangladesh, which in itself becomes an important thing. Reason being, since East Pakistan and West Pakistan went out of the picture and creation of Bangladesh happened in 1971, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैव हैड वेरी स्ट्रेन टाइज और इन्हीं स्ट्रेन टाइज की वजह से किसी भी तरीके के प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं, मिलिट्री रिलेशंस नहीं रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। इस वजह से अचानक से 2025 में जब ये मीटिंग यहाँ पे हो रही है, स्पेशली बिटवीन व्हेन वी आर टॉकिंग वन ऑफ द टॉप आर्मी ऑफिशियल्स फ्रॉम पाकिस्तान and the chief interim advisor of Bangladesh, this becomes an important highlight in itself for India to look out, because two of its neighbors, one of them being a permanent adversary, ये दोनों अगर साथ में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? And this meeting went up a notch जब यहाँ पर एक gift present किया गया by interim chief advisor Muhammad Yunus from Bangladesh to the top military official of Pakistan, that is General Sahir Shamshad Mirza. अब ये गिफ्ट क्या था? ये गिफ्ट था एक सिंपल सी बुक, बट इस बुक पे एक मैप लगा हुआ है और अगर आप ये मैप ध्यान से देख सकते हैं तो ये बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कई स्टेट्स को क्लेम करता हुआ दिखा रहा है। एंड ये आइडिया जो है, इसी को ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से प्रमोट किया जा रहा है। Now you have to understand that why this timing matters a lot. First, because this is the first time that we are seeing such an important diplomatic meeting between Pakistan and Bangladesh, especially after 1971. Second, this is Muhammad Yunus after Sheikh Hasina's exit. बांग्लादेश का यहाँ पे पूरा पॉलिटी जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है और यहाँ पर हम बांग्लादेश का रीअलाइनमेंट सिर्फ इंटरनली नहीं देखने वाले हैं, एक्सटर्नली भी देखने वाले हैं। सो इस सिचुएशन में पाकिस्तान का इस पिक्चर में एंटर करना ये भी एक नोटेबल पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंटर हियर इज दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वेयर मोहम्मद यूनुस हैज प्रोवोक्ड और सेड समथिंग दैट इज टुवर्ड्स एंटी इंडिया स्टांस। दैट मीन्स इससे पहले भी मोहम्मद यूनुस ने हाईलाइट किया है कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक्ड हैं और अगर उनको ओशन का एक्सेस चाहिए तो बांग्लादेश इज देयर। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग टू सी बांग्लादेश चेंजिंग, बांग्लादेश allowing Pakistan to enter in this changing picture, and third, that Bangladesh's sentiments towards India have been strained and they are moving in a different direction as of now. So in this particular event, ये जो मैप दिखाया गया है जो कि कंट्रोवर्शियल और गलत मैप है, जहाँ पे इंडिया के पार्ट्स को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है एज ग्रेटर बांग्लादेश। नाउ मेनी ऑफ देम माइट अंडरस्टैंड कि दैट इट इज जस्ट अ मैप। No, the map is not just about geography, map is the significance of claim and also geopolitics. So यहाँ पर जहाँ पे बांग्लादेश इंडिया के एरियाज को क्लेम कर रहा है, let us try to understand all of this, because जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है immediately there has been a huge backlash, because ये इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने ऐसा कोई रिमार्क दिया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में।
नाउ लेट अस ट्राई टू ब्रेक डाउन ऑल द लेयर्स जो यहाँ पे एसोसिएटेड है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग से जो ये हो रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। अगर हम बात करें तो ये जो पाकिस्तान के जनरल की विजिट है एज ऑफ नाउ, बेसिकली इट इज टू रिन्यू द मिलिट्री डिप्लोमेसी ऑफ बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान। आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड द फैक्ट कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है स्पेशली आफ्टर 1971 ज़्यादातर स्ट्रेन्ड रिलेशंस में रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की एट्रॉसिटीज़ स्पेशली पाकिस्तान ने उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में की थी, उसको अभी भी बांग्लादेश के लोग याद करते हैं और उसके अगेंस्ट है। इसीलिए एक सर्टेन स्ट्रेन हमेशा या सर्टेन प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप एंड हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान हमेशा रही है बांग्लादेश की। तो उसको चेंज करने का ये तरीका है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का आउटरीच का मेथड है। इसके अलावा यहाँ पे जो गिफ्ट की अगर हम बात करें, जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बताया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मैप जो है ये एक क्लियर डिप्लोमेटिक मैसेज है, ये किसी भी तरीके का इंसिडेंट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे पाकिस्तान का आउटरीच भी हो रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक एंटी इंडिया, पाकिस्तान तो हमेशा से एंटी इंडिया स्टांस पे था, अब बांग्लादेश भी उसी एंटी इंडिया स्टांस पे आते हुए हमें दिख रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश के कई मोटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश अभी दिखाना चाह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में जो डिपेंडेंस इंडिया की तरफ थी पहले, या अलाइनमेंट इंडिया की तरफ थी, अब वैसा नहीं है। पाकिस्तान की तरफ जो मूव है वो बांग्लादेश का एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इसके अलावा ये भी दर्शा रहा है कि रीअलाइनमेंट हो रहा है, स्पेशली बांग्लादेश का इंडिया से हटने की कोशिश है, और ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरनली जो यहाँ पे वर्क कर रहा है वो ये है कि यहाँ पे डोमेस्टिक नेशनलिस्ट इमेज जो है और डोमेस्टिक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी जो चला था, जिसकी वजह से यहाँ पे पहले जो पीएम थी शेख हसीना, जिनका एग्जिट हुआ है, वो मूवमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन करना और उस मूवमेंट की इमेज के साथ मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम रिजीम चल रहा है उसको सॉलिडिफाई करना। अब इसकी वजह से एक सिंपल सा आउटकम यहाँ पे हमें देखने को मिला है, वो ये है कि दिल्ली और ढाका, जिसकी ऑलरेडी टाइज जो थे काफी स्ट्रेन्ड रहे हैं सिंस लास्ट 2 to 3 years, यहाँ पे एक फर्दर एडिशनल और बहुत बड़ा पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, जिस पर इंडिया और बांग्लादेश का टाइज का नॉर्मलाइज होना और ज्यादा एफर्ट लेगा। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेटर बांग्लादेश, जो यहाँ मैप में दिखाने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली आप इसको एक इररेलेवेंट या इरेडेंटिस थ्योरी कह सकते हैं, जहां पे बांग्लादेश को इमेजिन किया जा रहा है कि वो अपने बॉर्डर्स से ज्यादा बड़ा है। अब मैं अगर इस स्पेसिफिक वर्ड की बात करूं जहां पे मैं कह रही हूं कि इररेडेंटिस थ्योरी है, तो इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली दर्शाता है कि कोई पॉलिटिकल या पॉपुलर मूवमेंट है जो क्लेम करता है कि हिस्टोरिकली हमारी कोई लैंड थी, वो अभी भी हमारी है और उसे हम रखना चाहते हैं, हम उसी को कह रहे हैं कि वो एक इररेडेंटिस क्लेम है। तो यहाँ पे बांग्लादेश के कुछ सेक्शंस का मानना है कि प्री पार्टीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905 से पहले जो बंगाल की बाउंड्रीज थी और यहाँ पे जो एथनिक और कल्चरल वेज में कॉमन एरियाज, लोग जहां जहां रहते हैं, वो पूरा एरिया जो है वो बांग्लादेश के हिसाब से होना चाहिए, बांग्लादेश होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल प्रेजेंस जो है वो बांग्ला रूट्स का वहां है। अब इसी हिस्टोरिकल रूट को डिस्टॉर्ट करके यूज किया जा रहा है, जैसे कि कुछ ग्रुप्स ऐसे मैप सर्कुलेट कर रहे हैं जो हमारे स्टेट्स को बांग्लादेश का पार्ट दिखाते हैं एज ग्रेटर बांग्लादेश। ऐसी इस वक्त कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा एंड for fulfilling diplomatic messages it is being used. So let me show you what they are trying to put. So these are the boundaries of Bangladesh. यहाँ पे कई स्टेट्स के साथ बांग्लादेश जो है बाउंड्री शेयर करता है इंडिया की, और फिर कुछ एक्सटेंड के बाद म्यांमार से भी शेयर करता है। कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं? तो आप ये रीजन जो देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, इसके अलावा यू विल फाइंड आसम है। तो इन एक्सटेंडेड रीजन्स को
यहाँ पर बांग्लादेश ने दिखाया है कि दिस होल रीजन is greater Bangladesh and probably that is what they are aspiring for, but that is not at all acceptable because ये इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट है। एंड ऐसा क्लेम करना या ऐसे मैप्स दिखाना बेसिकली एक डायरेक्ट अटैक है इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सोवरेनिटी पे, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल एंड ऑल्सो वेरी सेंसिटिव मैटर फॉर इंडिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। अगर आप इंडिया की बात करें यहाँ पर, सो हमारी जो डिफाइंड बाउंड्रीज हैं और उनमें जो आते हुए हमारे अपने रीजन्स हैं, अगर कोई भी हमारी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन लैंड दिखाएगा तो वो हमारी सोवरेनिटी वॉयलेट कर रहा है, वो हमारी सिक्योरिटी थ्रेट कर रहा है, एंड दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम यहाँ पे मैप पे वापस जाएं तो यहाँ वाला जो रीजन है, अगर आप देख सके, सो बांग्लादेश की बाउंड्री यहाँ पे और यहाँ पे आप नेपाल देख सकते हैं। दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। एंड स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कॉरिडोर जो है वो मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी अगर किसी भी रीजन से कॉम्प्रोमाइज होती है, जो कि ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में उसको अपना पार्ट दिखाया गया है, वो किसी वजह से भी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो हमारी एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी जो है वो भी सामने है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के कैप्चर से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है, वो मेनलैंड इंडिया से कट सकता है। इसके अलावा एथनिक सेंसिटिविटीज ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये पूरा मैटर बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाकी स्टेट्स की बात करें, असम की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, ऑल दीज स्टेट्स दे हैव देयर ओन एथनिक बैकग्राउंड, दे हैव देयर ओन कल्चरल बैकग्राउंड्स, एंड इन कम्युनिटीज को, इन रीजन्स को अपनी कंट्री का पार्ट दिखाना बांग्लादेश को डायरेक्टली विदाउट एनी प्रॉपर क्लेम, विदाउट एनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जो बॉर्डर कम्युनिटीज रहती हैं। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पर डिप्लोमैटिक कंसिक्वेंसेस भी हैं। इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस रहे हैं, चाहे कोऑपरेशन के टर्म्स रहे हैं, चाहे वो वाटर शेयरिंग के लिए हो, चाहे वो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए हो, ये सब खत्म हो जाता है और अंडरमाइन हो जाता है ऐसे डिप्लोमैटिक गेस्चर से। और साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी डायमेंशन, वल्नरेबिलिटी तक तो ठीक है, हमें पता है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर जो है छोटा है, वो हमारे लिए हमेशा वल्नरेबल पॉइंट रहेगा और हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सारे मीन्स, रिसोर्सेज जो है यूज करते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ जाता है कि जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर इसको एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं अपने एडवांटेज के लिए यूज करने लगे। ये जो एक बार मैप एक डिप्लोमैटिक गिफ्ट के तौर पे दिखाया गया है, वो एजेंडा बन सकता है कई एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का। और यहाँ पर जो हमें इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं वो इंडिया तक सीमित नहीं है, इस पूरे रीजन को इम्पैक्ट करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनल इम्प्लीकेशंस, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन हियर इज द फैक्ट कि इंडिया का जो पूरा ईस्टर्न फ्लैंक है वो रिस्क में आ जाएगा। कैसे? हमारे पास ऑलरेडी डुअल प्रेशर जो है एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। नाउ ईस्टर्न फ्लैंक पे वी विल गेट टू सी बांग्लादेश एंड चाइना ऑन ईस्ट एंड पाकिस्तान is a permanent adversary which is present on west। फिर जब हम बात करते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे सार्क हो, यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन की जहाँ हम बात कर रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेश के साथ, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो इन कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स पे हमें एक मेजर हिट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा हिट उन प्रोजेक्ट्स पे होगा, उस तरीके के कोऑपरेशन पे होगा जहाँ पे बांग्लादेश जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि मैरीटाइम कोऑपरेशन, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बे ऑफ बंगाल, तो यहां पर एक नया स्टेज सेट हो जाएगा राइवलरी के लिए, एक्सेस के लिए। और इसके अलावा हमें इम्प्लीकेशन, रीजनल इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा एज वेल।
इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये डिप्लोमेटिक गिफ्ट ही है, जहां पे एक नया नैरेटिव ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से स्टार्ट किया गया है, जो इन दोनों की कंट्रीज के बीच का ट्रस्ट है उसको अंडरमाइन करता है और यहाँ पे दिखाता है कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है सॉफ्ट पावर और नैरेटिव्स का। नाउ द क्वेश्चन इज, बांग्लादेश जिसके यहाँ पर लिबरेशन के लिए इंडिया वॉज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, इंडिया हेल्प विद ऑल देयर माइट इन देयर लिबरेशन, व्हाई बांग्लादेश इज डूइंग दिस। बांग्लादेश का अगर हम लिबरेशन वॉर की बात करें, आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू, इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट रोल रहा है वहां पे, और यहां पर ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि बांग्लादेश जो है एक ग्रेटर बांग्लादेश और एक एंटी इंडिया स्टांस की बात कर रहा है। तो यहां पे हमें डायरेक्टली सिर्फ एक चीज देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश में इंटरनली ही काफी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है। रिसेंट स्टूडेंट लेड नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें शेख हसीना जब पीएम थी उनको वहां से हटा दिया गया, उनको अपनी ही कंट्री छोड़ के जाना पड़ा और असाइलम लेना पड़ा। इस सिचुएशन में इंटरिम चीफ एडवाइजर रखा गया नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को, और जब से ये गवर्नमेंट आई है तो नेशनलिस्ट स्टांस जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए स्ट्रांग रखा गया। जब जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चेंज होती है वो फॉरेन पॉलिसी को ऑटोमेटिकली इंपैक्ट करती है, और इस सिचुएशन में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। सो इन दिस वेरी सिचुएशन द फॉरेन पॉलिसी इज गेटिंग इफेक्टेड बाय द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग। सो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपने अलायंसेस बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स रिकैलिब्रेट कर रही है, क्योंकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसमें एक स्ट्रॉन्ग वॉइस एंटी इंडिया भी रही है, और जिसका एक आप रिजल्ट शेख हसीना का हटना भी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक टाइम है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग का। बांग्लादेश जो है अपना एक लेवरेज गेन करना चाहता है इस ट्रायो के बीच में, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। Bangladesh has its own advantages, its own leverages, and it actually wants to go ahead and use it. And ये एक strategic signaling भी है, जहाँ पे बांग्लादेश जो है वो चेक कर रहा है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे अपना डिप्लोमेटिकली इस मैटर को हैंडल करेगा, कितने रैशनली हैंडल करेगा, कितने आराम से हैंडल करेगा। तो यहाँ पे it is a testing time for India-Bangladesh ties, but it is a time for recalibration and realignment as well. और इसका हमें एक इकोनॉमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक पावर देगा बांग्लादेश को, लेवरेज देगा, बिकॉज इंडिया वुड नेवर वांट सच क्लोजनेस ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जहाँ पे हम ऑलरेडी दो फ्रंट्स पे पाकिस्तान और चाइना को देख रहे हैं। This is not a very good news for India. So in this situation, Bangladesh might go ahead and use this particular leverage so that वो renegotiate कर सके जो भी trade, transit benefits already exist करते। Can you tell me in the comment section कौन से ऐसे trade और transit deals हैं जो इंडिया और बांग्लादेश की इस वक्त ongoing है और वो डिलीवर होने वाली हैं आने सालों में। जहां पर हम इंडिया एंड इट्स नेबरहुड की बात करें या साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स के लिए बात करें, तो ये जो पूरा मैटर चेंज हुआ है ये केस स्टडी बन सकता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ इंडिया विल टैकल दिस। इन दिस सिचुएशन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमैटिक एज वेल एज डीलिंग ऑन द ट्रेड फंड, जहां पे डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट देखने को मिल सकती है, पब्लिक मैसेजिंग देखने को मिल सकती है, बट एट द सेम टाइम वी वुडंट वांट बांग्लादेश टू गो टू फार, सो देयर विल बी आउटरीच एज वेल वेयर इंडिया वुड लाइक टू एक्सटेंड its friendship with other Bay of Bengal countries and also make sure that Bangladesh also lies in its corners. What do you think that India should do in such a situation? Let me know in the comments section. Furthermore, clearly understand this, that such episodes show and reflect that how there is immense uncertainty in South Asian geopolitics, and this uncertainty gives way to players, be it Turkey trying to have defense deals with Bangladesh, be it US trying to exploit Pakistan, and many other incidents that we get to see. That was all from my side. Thank you so much.